Hello, my dear students, and welcome back to Innovative Science Tutorials. So, here I am once again with a new class with a new topic for all of you children. And today we are going to study about the classification of plants. So, let us begin. First of all, let us see that what are the topics that we are going to cover in this chapter. Children, first of all, we will study about the meaning and concept of classification, followed by need and advantages of classification. Then we'll do characteristics of each kingdom with suitable examples like characteristics and example of Monera kingdom, then kingdom Protista, kingdom Fungi, and finally kingdom Plantae. We will be covering up this chapter, children, in separate sessions. Like for today's class, we will be starting up with the first 3 points, with the first 2 points that we have, that is meaning and concept of classification and need and advantages of classification. So let us not waste any time and straight away begin with the topic. Students, we all know that our planet Earth, which is also known as our Mother Earth, it inhabits many life forms, and these life forms, that is the living organisms, they have a wide range. Wide range means what, beta? They have a wide variety, starting from the unicellular or microscopic bacteria, viruses, okay, mycoplasma, to the most complex living organisms on earth, that is the human beings. Not only that, beta, many large living organisms such as blue whale, elephant, etc. That means, in short, there is a wide variety of living organisms that inhabit on planet Earth. So, planet Earth, just imagine, it is the home of so many living organisms. And you will be surprised to know that around 30 millions of species of living organisms are found on planet Earth, children. 30 million species inhabit the planet Earth. Such a big number it is, isn't it? So, I have a question for you. Do you think that it is very easy for us to remember the name, the characteristics of each and every living organism? No, it is not easy for us, isn't it? It is practically not possible. So, that is the intention behind studying this topic of classification today. So, in order to just solve this problem, isn't it? What we do, we classify the living organisms. मतलब क्या? Living organisms को हम समझ सके, सही से उनके बारे में जान सके, उनके नाम को याद रख सके, इसके लिए साइंटिस्ट ने, वेरियस बायोलॉजिस्ट ने एक टेक्निक, एक सिस्टमैटिक मेथड डेवलप किया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं. स्टूडेंट्स, वी ऑल नो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दे आर नॉट अलाइक. वो लोग बिल्कुल एक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक दूसरे की तरह दिखते हैं, इजंट इट? दे वेरी फ्रॉम ईच अदर, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. कैसे डिफरेंट है? क्या पॉइंट्स है, क्या बेसिस है इस डिफरेंस का? देर आर सो मेनी पॉइंट्स बेटा. एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जरूरी नहीं है कि हर किसी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम हो. Plants autotrophic hai, they can do photosynthesis. We cannot do, we are not like plants. We cannot prepare our own food. Can we do photosynthesis? No, we cannot. Plants, they are fixed. They cannot move from one place to another. But we and other animals, we can move, isn't it? So there is a lot of difference between the various animals and plants or whatever. Means, in short, the living organisms, they are not completely similar to each other, they have differences. तो बेसिकली क्या होता है क्लासिफिकेशन में, हम लोग सिमिलर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक कॉमन कैटेगरी में रखते हैं. उनको क्लास, यही प्रोसेस क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है. जैसे कि जिनका फीचर्स जो है एक दूसरे के जैसा है, वो एक ग्रुप में हम लोग उनको रख दिए. यही है क्लासिफिकेशन, और कुछ नहीं है.
ठीक है। फिर फर्दर हायर क्लासेस में आप लोग देखोगे कि कैसे हम लोग इनका नाम रखते हैं, दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, ठीक है। एंड इट कम्स अंडर द ब्रांच टेक्सोनॉमी, ओके। तो ये सब तो अभी आपको उतना नहीं पढ़ना है, अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन इज सिंपली grouping of the living organisms based on their similarities and keeping them in a common group where the organisms are related to each other, they have one or the other features in common to each other. Not only that beta, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन, लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि वाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन। अभी मैंने आपको बताया कि अर्थ में 30 मिलियन स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। हर एक का नाम याद रखना, हर एक का फीचर याद रखना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब हम लोग इन ऑर्गेनिजम्स को कॉमन ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, कॉमन ग्रुप में रखते हैं सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को, तो उनके बारे में हम क्या जानते हैं कि हाँ, इस ग्रुप वाला जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें ये कॉमन फीचर्स होगा। तो हमारे लिए ये काफ़ी इजी हो जाता है उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना, उनको रिकग्नाइज करना, नेम करना, या उनके बारे में कुछ भी रिकग्निशन करना, ठीक है। अचानक से मैं कहीं गई और मैंने देख लिया एक न्यू सा ऑर्गेनिज्म, उसके पास 4 लिम्स थे और 2 हाइंड लिम्स थे, मतलब टोटल 4 लिम्स थे। इसका मतलब क्या, वो किससे सिमिलर है, हमसे सिमिलर है, मैमल से सिमिलर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके पास, मैंने क्या बोला, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल चिल्ड्रन, कि उसके पास 2 फोर लिम्स भी है, आगे वाले जैसे हमारे हाथ है जो, ठीक है, और पीछे क्या है, 2 हाइंड लिम्स है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो अपने 4 लिम्स का, चारों के चारों लिम्स का यूज चलने के लिए करे, या 2 का खाने के लिए करे और 2 का क्या करे, चलने के लिए करे सिर्फ। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। कहना यही चाहते हैं कि कुछ डिफरेंसेस होगा और कुछ सिमिलैरिटीज होगा। हम लोग उन ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रखेंगे, एक ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे जिनमें सिमिलैरिटीज ज़्यादा होंगे और डिससिमिलैरिटीज बहुत कम होंगे। ऐसा नहीं है कि डिससिमिलैरिटीज होगा ही नहीं, होगा, लेकिन सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। वंस मोर आई विल रिपीट द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन for you children. Beta, classification is the division of living organisms on the basis of characteristics into several groups. These groups are either main groups or subgroups, okay. And what are the characteristics? Any characteristic may be defined as a particular form or function. For example, some animals, they have 5 fingers, okay. So what is this? This is a characteristic. You have black eye. Again, what is this? Your eyes are black, I mean to say. What is this? Again, this is a characteristic. I can say that my hairs are brown. तो मतलब ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्शन हो गया, किसी पार्ट का कलर हो गया। ये सारा क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। और हम लोग ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ही क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। I hope now it is clear. If it's still any doubt is there, you can ask me in the comment box. Okay, children? So let us proceed further. Now, children, let us learn something about the history of classification. आखिर क्लासिफिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, किन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो द फर्स्ट साइंटिस्ट associated with the classification of the living world is none other than the father of biology, that is Aristotle. Who is the father of biology? You can see on your screen, children. It is Aristotle. And beta, Aristotle was the first scientist. He was the first Greek philosopher who developed the first classification system. What did he develop? He developed the first classification system. So how did he classify the living organisms? He classified the living organisms into 2 groups. The first groups included all the organisms
that did not move from one place to another and he called them plants. उन्होंने उनका नाम क्या रख दिया? Plants. ये plants कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे? जो अपनी जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते थे. और दूसरा कैटेगरी क्या था उन्होंने जो दिया? Another group was the group of motile living organisms and he called them animals. जो दूसरा ग्रुप था वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का था जो कि एक जगह से दूसरे जगह जा सकते थे. तो बेसिकली उन्होंने जो ये क्लासिफिकेशन किया था that was based on what? Size, whether the living organism is very big or small, medium, whatever it is. तो प्लांट्स जो थे, प्लांट्स को भी उन्होंने फर्दर ग्रुप किया बेस्ड अपॉन साइज इनटू स्मॉल प्लांट, मीडियम प्लांट, लार्ज प्लांट. और एनिमल्स को भी उन्होंने डिवाइड कर दिया कि किस बेसिस पे डिवाइड किया? एनिमल्स को बेटा उन्होंने साइज के बेसिस पे डिवाइड नहीं किया, एनिमल्स को उन्होंने हैबिटेट के बेसिस पे क्लासिफाई किया. हैबिटेट मीन्स द प्लेस वेयर दे लिव. ठीक है, तो हैबिटेट में क्या? एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, लैंड हो सकता है. तो एरिस्टोटल क्लासिफाइड द एनिमल्स इनटू 3 सब ग्रुप्स. ओके, एनिमल मेन ग्रुप हो गया, इसका 3 सब ग्रुप क्या हो गया? एनिमल्स दैट लिव इन एयर called aerial animals, animals that live on water called aquatic animals, and animals that live on land and are called terrestrial animals. So Aristotle classified the entire living world into plants and animals. I hope this is clear, children, and let us move on to the next topic. Now, students, after Aristotle, there were 4 prominent biologists, 4 prominent scientists who worked in the field of classification. Who were they? They were, the first one after Aristotle was Carl Linnaeus. What did he do? He classified the living world like Aristotle only. He was much inspired from the work of Aristotle. Aristotle worked in the 4th century. ठीक है, उन्होंने 4th century में काम किया. जो भी डेवलपमेंट हुआ वो पूरी दुनिया के सामने रखा. अब उन्हीं के स्टडी को, उन्हीं के डिस्कवरी को आगे एक्सटेंड किया. किन्होंने इसको एक्सटेंड किया, फर्दर उस पर वर्क किया? कार्ल लिन्नेयस ने. तो इन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये रखा कि जो द होल लिविंग वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज प्लांटे एंड एनिमेलिया. और प्लांटे में क्या आते हैं? प्लांटे में जितने भी प्लांट्स है इन्होंने उनको ग्रुप किया और जितने भी एनिमल्स है उसको एनिमेलिया के अंदर ग्रुप किया. पहले एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो कंप्लीटली साइंटिफिक नहीं था, काफी हद तक वो अनसाइंटिफिक था, क्योंकि उन्होंने जो बेसिस लिया था वो क्या लिया था कि एक प्लांट जो है वो मूव कर रहा है कि नहीं, एक एनिमल जो है वो मूव करता है इसीलिए वो एनिमल है, प्लांट मूव नहीं करता है इसीलिए वो प्लांट है. तो ये कोई बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक या लॉजिकल रीजन नहीं था क्लासिफिकेशन के लिए, इसीलिए इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया कार्ल लिन्नेयस के द्वारा. किस ईयर में? इन द ईयर ऑफ 1735. और उन्होंने अप्रोप्रिएटली जो प्लांट्स थे उनको प्लांटे किंगडम में रखा और जो एनिमल्स थे उनको एनिमेलिया में रखा. और इनका ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज 2 किंगडम्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही क्या कहलाता है बेटा? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. मतलब 2 ग्रुप में बांटे जाने वाला सिस्टम. आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में कि कैसे हम लोग एनिमल्स या प्लांट्स को या कोई भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका नेमिंग करते हैं. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट, दैट इज अर्नेस्ट हैकल. बेटा he was another scientist. He actually classified the living world into 3 kingdoms, that is kingdom protista, kingdom plante and kingdom animalia. अब यहाँ तक के जर्नी में आपको क्या समझ में आया कि थोड़ा डिस्कवरी एरिस्टोटल ने किया
उनके डिस्कवरी पे और ज्यादा एक्सटेंशन किसने कंट्रीब्यूट किया? कार्ल लिन्नेयस ने। अब कार्ल लिन्नेयस के डिस्कवरी पे और थोड़ा सा वर्क करके उसको और डेवलप्ड कर दिया अर्नेस्ट हैकल ने इन द ईयर 1866, and he found another one more group, one more kingdom of unicellular organisms, okay, called the protista. These include amoeba, paramecium, etc. children, okay, I'll teach you later on. So first, the three kingdom given by Ernest Haeckel included kingdom protista, kingdom plantae and kingdom animalia. Next was the four kingdom classification, okay, four kingdom classification system given by Copland in the year 1956. He classified the living world into Monera, Protista and what children? Sorry, third one Plantae and fourth one Animalia. So he classified the living world into four categories. So you can understand that how the development is taking place one by one. पहले दो था, फिर तीन हुआ, फिर अब चार हो गया। ठीक है, अब हम लोग को एक और नया ग्रुप मिल गया जो कि क्या है? मोनेरा है। विल कम टू दैट लेटर ऑन। नेक्स्ट बेटा, द मोस्ट रीसेंट वन, जो सबसे रीसेंट क्लासिफिकेशन था, that was the five kingdom classification. Very 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 important for you all children to remember this one. That is the five kingdom classification. It was given by R.H. Whittaker in the year 1969. R.H. Whittaker classified the living world into five kingdoms. What were these five kingdoms, children? The first kingdom is known as Kingdom Monera, second kingdom is Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, and finally the last one, that is the fifth one, Kingdom Animalia. So, for you all children, you have to cover this one. Actually, you have to study the five kingdom classification given by R.H. Whittaker in details. I hope you have understood till here. In case of any doubt, do let me know. Students, now let us see the advantages of classification. See, children, as you all know, there are 30 millions of species of living organisms on earth whose study is not at all possible if we do it individually. So that is the first importance or advantages of classification, that is it makes the study of the wide variety of living organisms easier. Okay, so it is not humanly possible to study all plants and animals, isn't it? प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक के बारे में पढ़ा जाए। इसीलिए पहला एडवांटेज यही है कि क्लासिफिकेशन करने से क्या होगा, हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना या उनको रिकॉग्नाइज करना इजी हो जाएगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप can be understood very easily by studying only the characteristics of few members. Like हमने कुछ members के बारे में पढ़ लिया तो हमें एक जनरल आइडिया होगा कि हाँ बाकी मैमल्स भी ऐसे ही होंगे, या फिर हमने फिश के बारे में कुछ फिश के बारे में पढ़ लिया, डॉग फिश के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, तो हमें आइडिया हो गया कि बाकी फिश भी ऐसे ही होने चाहिए। तो वी कैन गेट सम आइडियाज, दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट, वी कैन इजिली स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वी कैन रिकॉग्नाइज देम एज वेल। नेक्स्ट क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी सिस्टमैटिक। ऑब्वियसली स्टडी सिस्टमैटिक हो जाएगा, हमें पता रहेगा कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप को या सब ग्रुप को, फाइलम को या डिवीजन को बिलोंग करता है। ठीक है बेटा, फाइलम वर्ड हम लोग यूज करेंगे एनिमल्स के केस में, डिवीजन हम लोग प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में यूज करेंगे। मैं आपको लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर में बताऊंगी कि कहाँ क्या यूज करना है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड प्लेसिंग देम इनटू पर्टिकुलर ग्रुप। अगर एक कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म, सपोज एक एनिमल मैंने गलती से मैं कहीं घूमने गई और एक एनिमल आई केम अक्रॉस अ न्यू ऑर्गेनिज्म, वो कभी डिस्कवर ही नहीं हुआ था, सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, तो मैं देखूंगी, क्या देखूंगी, तो देखूंगी जो भी बाहरी फीचर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वेदर इट इज अ प्लांट और एनिमल, उसको हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बोलते हैं।
पहले तो मैं उसे डायसेक्ट या उसका ऑपरेशन तो नहीं करने वाली ना, उसे एक्सटर्नली ही पहचानने की कोशिश करूंगी। अगर उसके पास 2 आईज है, 2 ईयर्स है, ठीक है, और टेल है, 4 लिम्स है, तो मुझे क्या लगेगा, ये जरूर क्या है, मैमल्स को बिलोंग करता है, क्योंकि मंकी भी तो ऐसा दिखता है। मैं जस्ट ये समझाना चाह रही हूँ कि किसी नए ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी या उसका क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं। जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम नए वाले को, जिनको कभी हमने नहीं जाना था, जो कि अननोन है, उसको पुराने ऑलरेडी डिस्कवर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है। जब हमें ये पता चल जाता है वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है, फिर हम उसे उस ग्रुप में इंक्लूड कर देते हैं। ओके, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली क्लासिफिकेशन। ऐसा किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, और जो ये करते हैं उनको हम, उन साइंटिस्ट को हम लोग टेक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं। लास्ट क्या है बेटा, इट ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सिंपलर टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। मैंने बहुत अच्छे से आपको ये बता दिया है कि कैसे यूनिसेलुलर या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेके आज के जो मॉडर्न, जो मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एनिमल है, ह्यूमन बीइंग, इनका डेवलपमेंट हुआ। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके आज एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो चुका है, इवोल्यूशन हो चुका है, जो कि काफ़ी एडवांस्ड है। ये तो क्लासिफिकेशन क्या करता है, क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी स्टडीज में भी बहुत हेल्प करता है। I hope you have understood everything today, whatever I have discussed with you all. So once again I'll tell you, if you find my channel, my videos, my classes useful, do subscribe my channel, click the bell icon so that you can get all the notifications of any upload or live class. Okay, and please don't forget to comment in case you have any doubt. कोई भी doubt रह गया है, ask me. It should not be left behind. I don't want to keep it in pending for future. I want to clarify everything. अगर कुछ रह भी गया है तो you will let me know through the comment box, chat box, as you wish. So that's all for today, children. All of you take care, stay home, stay safe. We'll see you all in the next class with the next video lecture that will be about the detailed study of the 5 kingdom classification, that is Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, and Animalia will do separately. ठीक है, वो हम लोग एक अलग चैप्टर है, वो उसको हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे. So thank you my dear students, to all in the next class. Bye.